Welcome everyone. Myself Professor KV Kushare, lecturer in the Mechanical Engineering Department from MAP's Rajashree Shahu Maharaj Polytechnic, Nasik. Okay, we discussed the Unit 2 Planning and Organization at a supervised level. Okay, last lecture we discussed length of commitment already made, identification of alternatives, evaluation and selection of alternatives. Okay, then another developing derivative supporting plans. Once the plans is selected, various plans are derived so as to support the main plan. The supporting plans may be done for buying equipment, buying the raw material, etc. The development of the plan required. Programming. The identify the activity or task that needs to be the completed in order to reach the desired objective. Allocating resource. It is important to identify resource within the organization to carry out specified activity. Resources are normally divided into three general categories: human resource like your manpower, physical resource like your material, machine, tools, facility and equipment, and then financial resource. Okay, इधर डेवलपिंग डेरिवेटिव और सपोर्टिव प्लान में क्या बताया गया है, जो भी कंपनी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो स्टार्ट करते समय टू जो प्रोडक्शन लाइन तो स्टार्ट होगी उस टाइम जो अलोकेटिंग रिसोर्स रहेंगे में थ्री टाइप्स दे आर गिवन थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, उसमें जो कंपनी का प्रोडक्शन करने का उधर जो मैन पावर रहेगी दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. जो फिजिकल रिसोर्स रहेगा, आपको मटेरियल लगेगा, मशीन लगेगी, कुछ टूल्स लगेंगे, फैसिलिटी देनी होगी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशन, क्लीनिंग, दैट इज़ द फैसिलिटी. एंड जो इक्विपमेंट रहेगी, जो भी आपका रॉ मटेरियल रहेगा, उसके साथ जो मेंटेनेंस इक्विपमेंट रहेंगे और जो मशीन इक्विपमेंट रहेगी, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन अ फिजिकल रिसोर्स. देन अनदर इज़ अ फाइनेंशियल रिसोर्स. ये सब करके जो मैन पावर रहेगा उनको जो सैलरी रहेगी, मटेरियल के लिए, मशीन के लिए, टूल्स के लिए जो भी पैसा लगेगा उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स भी ज़रूरत होता है. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्स. दैन शेड्यूलिंग. इस्टेब्लिश द रिक्वायर्ड टाइम नीडेड टू द कंप्लीट ईच एक्टिविटी. इट विल involve any assessment of how long each task take to be completed. Fixing accountability. Determine the specified individual or institution will be responsible for the accomplishment of identified activities. Simple instrument like a Gantt chart can be used to indicate task and plan completion, which indicate task vertically on x-axis and time horizontally on वाई एक्सिस. तो गिवन है टू एक्सिस. सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है, मतलब एक्स एक्सिस जो रहेगा वो टाइम के हिसाब आपका जो प्रोडक्शन रहेगा, टारगेट होगा, जो कैसा कंप्लीट होगा. और वर्टिकली क्या रहेगा, वाई वर्टिकली क्या रहेगा, जो आपने प्लान किए, जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी आनी चाहिए, मार्केट में उसका वैल्यू कैसी चाहिए, वो वैल्यू और कस्टमर को बेटर कैसी मिलनी चाहिए. दैट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन एक्स वाई एक्सिस. Measuring and controlling the process. We must monitor the progress of plan, else it may result in hug loss. Supervisor need to check the progress of their plans and accordingly take remedial action on it. So process of controlling is a part of any plan. Okay, then next is the prescribed standards form of various activity. The supervisor play visual role in carrying short-term plans of organization. For that, supervisor must deal with the available resource manpower by keeping customer expectation in mind. Next is the planning can be machine-wise planning, manpower planning, material flow, appropriate method for implementation or any measurement. जो आपका प्रीसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताया है उसमें क्या बताया है, मशीन वाइज प्लानिंग करनी चाहिए. सुपर एक मशीन है, सीएनसी मशीन दिया है, उसके सीएनसी मशीन के ऊपर स्किल वर्कर होना चाहिए. उस स्किल वर्कर को 10 आवर्स की ड्यूटी दिए तो कितना प्रोडक्शन होगा, उसके हिसाब से मशीन वाइज प्लानिंग करनी चाहिए. देन मैन पावर प्लानिंग ऑल्सो डिपेंड. मटेरियल फ्लो, मटेरियल जो अपना मटेरियल प्रोडक्शन रहेगा, सब पिस्टन रिंग का अपने एग्जांपल रहे, पिस्टन रिंग के लिए जो मटेरियल रहेगा तो मटेरियल की जो ज़रूरत रहेगी वो फ्लो रहेगा, वो अवेलेबल रहना चाहिए. उस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है वो continuously with working for any measurement. If also bring standardization in the work, enable right decision making, effective utilization of available resource, establish link between authority and responsibility, clarify in the work etc. Few standard forms of various activity are flow. उन्होंने ये बताया जो डिसीजन रहेगा, सपोज कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, टारगेट ज़्यादा है, कम टाइम में कंप्लीट करने का है, तो उसका डिसीजन कैसे लेना चाहिए, कम टाइम में कैसा कंप्लीट करना चाहिए,
और जो कस्टमर है, हमारा जो कस्टमर है, उसको भी कैसे सेटिस्फाई करके उसका कम टाइम में जो मटेरियल रहेगा उसको वो डिलीवर करना चाहिए। दैट इज़ द रिसोर्सेज। देन जो लिंक रहेगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंक रहेगा, आपको मटेरियल लग रहा है, वो वर्कर भी लग रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो जो मैनेजमेंट है उससे डिस्कस करके जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूर्ण करके हमारा जो टारगेट है वो कैसा कंप्लीट करना चाहिए। दैट इज़ द लिंक बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन मटेरियल रिक्रूटमेंटाइजेशन फॉर्म, this form is used to procure the material from supplier to factory so that the production will not be stopped. The requirement of raw material is a communicate to supply throughout the factory. ओके, आपका जो मटेरियल रहेगा उसकी ज़रूरत कैसी है, सपोज आपको 3 दिन में इतना मटेरियल लगने वाला है, तो उसकी जो फॉर्म्स, उसकी जो नॉर्म्स रहेंगे कि अपना कितना मटेरियल चाहिए, कैसा डिलीवर करना है, कितने टाइम में आना चाहिए, दैट इज़ द मटेरियल फॉर्म्स। द रॉ मटेरियल रिसीव रिपोर्ट, दिस फॉर्म इज यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव। इट्स हेल्प सुपरवाइजर टू कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेटर द ऑल रिसीव्ड मटेरियल इज एज पर द ऑर्डर गिवन। इफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट गुड देन सच मटेरियल कैन बी रिटर्न बैक टू द सप्लायर। जो कंपनी में मटेरियल आ रहा है, जो मटेरियल रहेगा, कंपनी जो मटेरियल आएगा उसमें सुपरवाइज़र वो मटेरियल चेक करेगा। वो मटेरियल चेक करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट रहेगी, जो मटेरियल आया है उसकी क्वालिटी बेटर है, प्रोडक्शन स्टार्ट किया बट मटेरियल में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो डिफेक्ट आने के बाद कुछ दिनों में वो रिपोर्ट बना के जो मटेरियल भेजा था उसका जो भी डिफेक्ट आया वो सच मटेरियल कैन बी रिटर्न बैक टू सप्लायर, वो सप्लायर को रिटर्न कर देगा। दैट इज़ द रिपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इन processing form, this form can be used to efficient management of raw material. This form can be used to hand over particular raw material from one person to another person or one process to another process. Keeping record of material transferring can help supervisor to determine at which place raw material need to be ordered. It's will help to maintain the sufficient level of inventory for continuous production. Job description, this form will be give the detailed ideas about the job to be performed by the work. It is also called as work assignment sheet. With this form the worker will be able to know detail about job, his duty and responsibility while performing job, do and do not while performing job and any other specified information related with job description। मतलब जो भी वर्कर रहेगा, हर एक वर्कर को उसका जो भी टारगेट, जो भी काम, जो भी वर्क रहेगा वो उसको बताया जाएगा। सपोज वेल्डर होगा तो उसको वेल्डिंग के लिए बताया जाएगा, किधर करने के, कहाँ पे उसका वर्क रहेगा, किस टाइम पे ऊपर, कौन से लाइन के ऊपर। दैन वेल्डर रहेगा, कटिंग करने वाला पर्सन रहेगा, क्योंकि सीएनसी ऑपरेटर रहेगा, क्योंकि क्वालिटी चेक करने वाला भी पर्सन रहेगा। तो उनका वर्क कैसा करने का वो डिवाइड करके उसको टोटली डिस्क्रिप्शन उसको दिया जाएगा। That is the different types of given the standards form of for a various activity. First, like material requisition form, raw material entering processing form, job description. That is the fourth given forms of the activity. Okay, thank you.